Or summer internship. How many of you had a good experience during the summer internship? How many of you had not so good experience? Okay, why? Can you just tell me? How many of you were sitting idle in the home? I mean, because let me first of all tell you from our side, we interacted with almost all the companies, either myself or the dean or the faculty or the CRC team, and there have been appreciation also, good appreciation. I visited 2-3 companies and there were good, very positive responses. On the other hand, there were very highly disappointing negative responses. और जब negative in the sense, not only, they were not concerned about the outcome, they were concerned about your attitude, temperament and easy go attitude. कोई मतलब नहीं है. As if ये उनकी जिम्मेदारी है, as if ये उनका काम है कि वो आपको बुला करके आपसे काम करवाएं. आप सीखने गए थे, आपको सीखना है. Easy to very easy to blame. कल को आपके बॉस भी जो हैं, जब आप अपने सिचुएशन, वर्क सिचुएशन में जाएंगे, तो वहाँ पे भी बॉस आपको ये नहीं बोलेगा कि यहाँ पे कस्टमर है, इस कस्टमर से ऐसे करके ऑर्डर लेना है. You will have to swim on your own. And then wherever little guidance, you will get the guidance. और जब वो फीडबैक हमें सेटिस्फैक्ट्री नहीं आया, कई जगह तो था कि लोग अटेंड ही नहीं कर रहे थे. They were not even reporting. Students have not been reporting to their organization or sending the reports. What do you expect from the organization? And then when we spoke to the students, they had no answer. Someone was sitting in the room, someone was sitting at the home, making excuses. कि सर मेरे को तो यहाँ भेज देते हैं, कोई गाइड नहीं करता, कोई मिलता नहीं, कोई ये नहीं करता. Yes, they have their own job. They will do it. They are busy person. You have to find a way out to get the solution. And somewhere, wherever there were genuine reasons, genuine causes, our CRC team and we were proactive to talk to them. Either with the same organization, in certain cases we switched over you to some other organization. And there have been cases of indiscipline also. Arrogance. आप अपने बॉस से अजीब तरीके से बात कर रहे हो, एज इफ कि आपको कोई चिंता नहीं है. और दूसरी तरफ जिन्होंने अच्छा काम किया, जिसकी उनको अप्रिसिएशन भी मिला, और खुद मेरे केसेस में और कई जगह ऐसे मेल आए हैं जहां पे कि ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट कर रहा है कि यू प्लीज एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप. So this is the difference in the attitude which will make one person successful and one person will not succeed. And this, people who are present here and the people who are not present here. I mean, you have been in the corporate, you know how so that means that you have not committed yourself to the internship and the corporate culture even. You claim that you have been working with the best of the organization, but still we find that you are not on time, you are not in dress. And then you will have 100 kind of excuses. Sorry. अब तो साल भर में आपका ये डिफरेंस हो जाना चाहिए था, और ये हो जाना चाहिए. Because today we are sitting, August is over, September, अगले 15 दिन 20 दिन में, 1 महीने में आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस आने शुरू हो जाएंगे.
and virtually you will be there with the corporate. And actually by next April, within 6-7 months, you will be in the work situation. How do you expect that the organization is going to tolerate you this way? So we are okay with that. I mean, 20 of you who are here, that's fine. तो हमारे लिए ये मैसेज ये है कि you are one of the fortunate batches, I would say, that जो हम लोगों ने नई शुरुआत की, नए तरीके से आप लोगों को क्लासरूम टीचिंग के अलावा इंडस्ट्री रेडीनेस, सर्टिफिकेशन, बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई। एंड कहीं बीच से आपको हम कुछ शुरू नहीं कर रहे हैं, वो कंटिन्यूटी। सो यू हैव टू मेंटेन दैट कंटिन्यूटी। दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड ब्रश अप whatever you have learned in the first year, work on your reports on the summer internship. Remember, note down all those points that your faculty may have told you, your seniors would have told you, your experts, the practitioners who have been talking to you in the iLead session, in your orientation program, and otherwise so many lectures and opportunities you have had. Note down those points. Focus on those sectors where you are interested. You may have your dream company, dream job in mind. Work on those sectors, work on those companies, work on your strengths, work on your knowledge. Work on situations, because your questions will be around situations, not direct answers. ये आप अपने जो ट्रेनर्स हैं उनसे भी सीखिए, अपनी फैकल्टी से भी सीखिए, और आपस में वो कल्चर बनाइए कि एक दूसरे से सीखना है. एंड यू हैव टू रियली वर्क हार्ड फॉर नेक्स्ट 4, 5, 6 months. So this is my message. Everyone will be repeating same thing. You know it better how you have to work and how you will be successful. You also know the kind of companies which have been coming. Charu ma'am and Ghanesh will also explain to you what new companies we are expecting this particular time period. Maybe this recruitment cycle, as it is those companies, there will be few companies which would be planning fresh, जो कि लास्ट ईयर उन्होंने नहीं किया होगा. इस बार हमारे एफर्ट से, हमारे कनेक्ट से, या फिर उनके प्लान में ऐसा होगा कि उनको वर्कफोर्स ऐड करना है, तो दे विल कम ओवर. सो यू हैव टू हैव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दिस. Another, based on the experience, another important thing that I would like to highlight is, please read the job description JD very carefully. आप लोग पढ़ते नहीं हैं, आप लोग समझते नहीं हैं. समझ नहीं आ रहा है तो समझने की कोशिश कीजिए, लोगों से गाइडेंस लीजिए, क्योंकि उसका नुकसान ये होता है कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं और जानकारी के अभाव में आप अपना नाम नहीं देते. दूसरी तरफ जेडी में कुछ एक्सपेक्टेशंस होता है, कुछ डिस्क्रिप्शंस होता है, वो लोकेशन को लेकर के हो सकता है, उनकी फील्ड नेचर ऑफ जॉब की तरीके से हो सकता है, और आपका कुछ और डिजायर है और आप उसमें फिट नहीं बैठते, लेकिन फिर भी आप उसमें अप्लाई कर देते. सो प्लीज गो थ्रू द जेडी केयरफुली. यू शुड नॉट बी shameful, or you should not shy in asking, clarifying those roles. और CRC से मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि जो पिछले साल के जेडी हैं उसका एक समरी, जो जॉब प्रोफाइल्स हैं वो हम शेयर करें, और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम शेयर करें, जिससे कि ये उसके तहत तैयारी कर सकें. हमारे पास FAQs है, सारे FAQs हम इनसे शेयर करें. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एक्शन नाउ. SIP का जो रिपोर्ट आप बना रहे हैं अच्छी तरीके से बनाएं. कुछ लोगों ने SIP बहुत अच्छा किया होगा, दे विल बी रिवॉर्डेड. जो अच्छा नहीं किया है, कई लोगों का ऑलरेडी टर्मिनेट हो गया, दे विल हैव टू रिपीट
and there is no mercy on them. Secondly, अगर अभी भी आपका रिपोर्ट satisfactory नहीं होगा during the assessment, तो हो सकता है कि उस assessment में भी आपका SIP रिपीट करने की नौबत आ सकती है. तो you have to be careful. You have to be very, very careful and particular. You have to be very, very careful and particular that your work is satisfactory, your mentor is, faculty mentor is satisfied and the panel is satisfied. ये नहीं है कि आप घूम करके आ गए, काम करके आ गए और यहाँ पे आपने रिपोर्ट या अपना काम अपने सीरियसली सबमिट नहीं किया and your project will be clear. No. So that is from the institutional requirement point of view. Secondly, जो आपने काम किया है यही काम आपको आपके रिक्रूटमेंट में काम आएगा. So try to understand what you have done, which industry you have done, what organization have you done, what competitors have you done, what you have contributed, what was your learning, what were the concepts which were involved around in that particular project. If you had developed a questionnaire, if you had developed a survey, why that survey, and what was the method of having that kind of a survey. So all these questions, and then you have to make a small note, prepare a note, उसको mug up कर लीजिए. ये जो 6-7 क्वेश्चंस मैंने भी बोला है उसके अराउंड एक सिनॉप्सिस बना लीजिए. अपने सीनियर से बात कीजिए कि उन्होंने कैसे तैयारी की थी, और इस दौरान जितने भी, तो एक आपका अपने सब्जेक्ट पे फोकस होना चाहिए, एक SIP पे फोकस होना चाहिए, एक आपका जिस सेक्टर में आप एस्पायरिंग, जिस डोमेन में आप एस्पायर करते हैं उस डोमेन में काम करें, और जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं उस सेक्टर और उसके से मिले जुले जितने सेक्टर हैं उस पर बात करें, और जिन जो कंपनीज आ रही हैं, जो JD शेयर किया जा रहा है उस कंपनीज के बारे में आप स्टडी करें. तो ब्रॉडली इतना ही मैं कहना चाहता हूं. इससे आगे I don't have any words to say. I can't talk to empty chairs. I think you have more knowledgeable people outside. आप लोग ज़्यादा सीख लिए शायद बाहर जा करके. अभी से आपकी प्लेसमेंट शायद हो गई है, आपको इंस्टीट्यूट की या इस डिप्लोमा की ज़रूरत भी नहीं है. So you decide your own time, you decide your own behavior. And I can see many faces. I think the entire class is out. So I don't want to make any more remarks. It's highly disappointing for all of us कि इतना करने के बावजूद हम आपको इतना ही सिखा सके, और इतने दिनों के बाद मुझे लगता है कि पहले दिन और आज के दिन में कोई फर्क नहीं पड़ा. So you reflect upon that, and through you I am sending the message to all of them. Let these people come, let them see the empty chair and go back with the right kind of a impression कि हाँ ये impression है, यही आप लोग चाहते हैं. इसी तरह से आपका इंस्टीट्यूशन ग्रो हो, इसी तरह से आप ग्रो करें. ओके, नाउ जिनकी जो सेटिस्फाइड नहीं है उनका बताइए कौन सा, क्या कुछ 1-2 रीजंस बताइए क्विकली, बिकॉज अदर्स ऑल्सो हैव टू से कि कोई अगर क्या कंसर्न था, आपकी तरफ से कंसर्न था, इंस्टीट्यूट के तरफ से कंसर्न था, क्या कंसर्न था, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से था उससे कंसर्न था. ऐसे भी सिचुएशन देखे, सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वन ऑफ यू आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल, द अदर इज डिससेटिस्फाइड. मेरे को तो पता ही नहीं कि क्या काम कर रहा है. दूसरा वहां पे ही इज विनिंग रिवॉर्ड्स, एक्कोलेड्स, प्रेजेस. आई डोंट नो हाउ दिस कैन हैपन. आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो. अगर मान लीजिए एक गाइड में प्रॉब्लम है, लोकेशन में प्रॉब्लम है, लेकिन आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो. या टेल मी, अब 4-5 हाथ उठे थे, बताइए व्हाट वाज द प्रॉब्लम. क्या हो गया अब सडनली हाथ क्यों रेस्ट्रिक्ट हो गया? अब प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम होगा, बताइए. So my only concern is that
लाइक जो मेरे मैनेजर थे वहाँ पे ऑलरेडी 25 to 30 एम्प्लॉयज़ थे, दे ऑल आर मेल एंड आई एम द ओनली गर्ल्स. तो मैनेजर्स नहीं चाहते थे कि वहाँ पे मैं रहूँ, तो दैट्स वाई आई फील डीमोटिवेटेड. इंडियन आर्मी में आज तक कुछ सालों पहले तक वुमेन नहीं होती थी, लेकिन वुमेन मेड अ वे देयर एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल. तो क्या सॉल्यूशन क्या ढूंढा आपने? बात किया, हम लोगों से बात किया, मैनेजर से बात किया, उनके सीनियर से बात किया, या you could manage well if you could manage? Yeah, I have talked to my manager. So you managed well? Yeah, I have. You could complete your internship? Yes, sir. So वो ऐसे प्रॉब्लम्स तो हजार आएंगे. मेरे सामने प्रॉब्लम है, ये मेरे सामने प्रॉब्लम है ना, खाली कुर्सियां हैं. कैसा मैं व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग दैट आई हैव. बाहर में अभी सब जो है पैर छुएंगे, और यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो चीज नहीं कर रहे हैं. तो वी हैव टू हैव द आर्ट ऑफ हैंडलिंग थिंग्स. So I must congratulate you rather कि you have faced the situation, you completed. तो वो प्रॉब्लम नहीं है, you have actually done well. हो सकता है अगर आप 10% ज़्यादा परफॉर्म करते, 10% कम करते, लेकिन आपने जो सिचुएशन को हैंडल किया है वो आपके उस 10% परफॉर्मेंस से कहीं ज़्यादा बेहतर है. आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू. थैंक यू. और कोई प्रॉब्लम? Good morning, sir. Good morning. So we both are in same company, Hitachi, and my problem also same. But they firstly told when Pranab sir came for interview, he said we are going to place in Croma, Reliance, and all this. But I got a very small store that I cannot even stand there for if 5-10 customer comes, I cannot even stand inside because the space is very small, and the same concern male person is there, and there is already a Hitachi promoter, so they don't require any more because there are always 10 to 15 people working there, so they don't want. Why are you disturbing us? First of all, you are coming late and then you are disturbing. Why you are opening it? And they don't want more employees there, but still I have to work, and And you have worked? Yes, sir. Good. So I think you must be happy again. Yes, sir, I have completed. So ऐसे situations तो जैसे जैसे अब आप ये जो नोएडा में मैं गया था, तुमसे मिले थे हम, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था? टारबेक्स था. अमिताभ वो रीजनल ऑफिस हेड है, वो हेड ऑफिस था रीजनल ऑफिस का, और वो मुझे नहीं लगता कि वो 4 फीट बाई 4 फीट से ज़्यादा का स्पेस था वहाँ पे. इट वाज अ शेयर्ड स्पेस. सो दैट डे आई ऑल्सो रियलाइज्ड कि हाउ द फ्यूचर ऑफ वर्क इज गोइंग टू चेंज. यू मे नॉट एक्सपेक्ट कि बड़े बड़े ऑफिसेस का कॉन्सेप्ट है, लोग घर से काम कर सकते हैं, करेंगे जहाँ पे ज़रूरत नहीं. उनसे मैंने पूछा, वो बोले सारे तो फील्ड में रहते हैं, हम ही 3-4 स्टाफ रहते हैं, यहाँ से सारा मैनेज होता है, बाकी फ़ोन पे मैनेज होता है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो चलती रहेंगी. तो आई थिंक वी हैव टू सी. सो दिस इज द फ्यूचर. और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने ऐसे ऐसे डिफिकल्ट टेरेन्स में काम किया है, तो अब आप ये सोचो कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल कितनी ज़्यादा होगी. अगर कल को अगर आपको कोई ऐसी कंपनी आ जाती है जो कहता है कि ऐसे जगह आपको जाकर के काम करना पड़ेगा, तो एज कंपेयर टू समवन हु मे हैव नॉट फेस दिस सिनेरियो, यू विल बी कॉन्फिडेंट कि मैं तो वहाँ पे कर ली थी, चलो बढ़िया कंपनी मिल रहा है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, लेट अस डू इट. Yes, sir. Yes, sir. So you should feel proud. जी. Thank you, sir. थैंक यू. और कोई सिनेरियो सिचुएशन? तुम्हारा क्या हुआ था प्रॉब्लम गाजियाबाद में? तुम जो परेशान थे कि कोई हमको नहीं दिखा रहा है, फोटो खींच के भेज देता है, वो अब क्या हुआ तुम्हारा? नहीं सर, ठीक था मेरा. कैसे ठीक हो गया अचानक? सर मैंने अचानक कैसे ठीक हो गया? प्रॉब्लम बता दी मैंने.
काम नहीं मिल रहा है तो खाओ और सो, आम खाओ सो। हाँ? कुछ लोग दशहरी खा करके आनंद कर रहे थे घर में। और शाम में मौका मिला तो फिर रबड़ी और फलूदा भी। तो बाद में काम हुआ ना। और कुछ लोग के पास इतना ज्यादा शर्ट था और इतने स्मार्ट थे कि एक ही दिन में 4 जगह घूम करके शर्ट बदल करके फोटो खींच करके और भेज दिया कि हमने 10 स्टोर पे काम कर लिया और 10 दिन का रिपोर्ट भेज दिया। ये नहीं पता है कि अगला जो है वो ये कर करके और बूढ़ा हो गया। वो जो आपका मैनेजर होगा वो भी तो कभी इसी तरह से अपने बॉस को बेवकूफ बनाया होगा, तो उसको तो समझ में आ गया बात। कौन था वो लड़का? हाँ, आज तो आप लोगों को भी पता है, हम नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों को पता है। और ये दशहरी वाला कौन लड़का है? हाँ, बस सब दुनिया पता है सबको। अब मैं क्या बोलूं? चलिए, थैंक यू।